Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study Gold. Today we are going to know about the topic which is relation between literature and life. So what is this relation actually, how this relation has been disclosed, and who disclosed this relation between literature and life, and who described this relation between literature and life, and how he has been described, how he has been explained these all things. So one by one we are going to know about all the things. First of all, I am going to take a start from the literature, that what is literature actually. So literature is actually the mirror of life. This is something art. And why sometimes we say that the literature is something artistic thing. So this is only art. What is artistic? Artistic is something about the writers who put soul, who put aesthetic way, who put all the imaginations, ideas and understanding level in his work. This is why this is called artistic. When something relate to the literature, when some person relate to this work, this imaginations and ideas, and made the ambience of these all things, so this will call artistic thing. So this is something artistic as well. This is mirror of life. This is understanding of our own self, and whatever is going in our surrounding, whatever is going in our environment, what the atmosphere we has, and what are the imaginations, what are the ideas, what are the perceptions in our mind, and what are our thoughts. These all things combined together, and these things will make the literature. In my thinking, that these all things made the literature, whatever I read, whatever I understand from the topic. So we are going to know about Plato, that how he disclosed the relation between literature and life. So this relation is too much broad, too much aesthetic. It is immortal. Why he said that this is immortal? In Plato's theory of knowledge, he described these all things. He described the connection between literature and life, and he disclosed the literature, that what is actually literature is. So he disclosed the things which are the points. Literature is actually the virtue, literature is actually the soul, literature is actually the immortality, and literature is the divinity. Why Plato said these all things, that literature is divinity and literature is immortality? Because the writer, the poet, when he is writing or she is writing the work, the literary work, he or she is putting the ideas, putting the perceptions, experiences, imaginations, the realities all into the work. So this has been multiplied by many objects, by the ideas, by the imaginations, by the understandings, by the experiences. So this is why he called it that this is immortal, because literature never dies and literature never has any ending. This is too much broad, this is too much capacious. So what is the next point? This is about Plato, who is the pupil of, जो कि शागिर्द थे सॉक्रेट के. He was the pupil of Socrates and the teacher of Aristotle. He said that literature is, he made the relation between literature and life. How he made this relation, how he disclosed this relation beautifully. He said in one line that imitation, literature is actually imitation of imitation. Thus, it is twice removed from the reality. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? He is saying this thing that कि two time वो कहना चाह रहे हैं कि literature has been removed from the reality. One time this is imitation and the second time this is imitation. Because of what? Because the writer, the artist, when he is doing something, he gave examples very beautifully. He said that when the painter is painting the bed, actually he is painting the bed, he is not making the bed. He didn't make the bed. So this is why he is calling this imitation. The first imitation, he is painting the bed. And what is the second imitation? This is something, imagination, thoughts and ideas of the painter in his mind.
he paint the bed as it is whatever is going into his the mind. So this is why Plato called this twice imitation of imitation. This is the main point. And now this is twice removed from the reality. How it removed, I told you right now. So going to the recording, seeing कि क्या क्या कहा है हमें प्लाटो ने. Okay, before going to the recording, I want to say something else कि जो प्लाटो हैं, अफलातून, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ही टोल्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ नॉलेज विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इन थ्योरी ऑफ नॉलेज ही टॉक्ड अबाउट डिवाइनिटी, ही टॉक्ड अबाउट इमॉर्टैलिटी, एंड ही टॉक्ड अबाउट एस्थेटिक सोल. ही मल्टीप्लाइड दीज ऑल थिंग्स विद द literature, and when these all things multiplied by the literature, it became immortal. It became the supply which has never ending, something like this. So viewers, going to the recording, let's see. So here we are for the recording, relation of literature to life. There is an intimate connection between literature and life. It is in fact life which is the subject matter of literature. Life provides the raw material on which literature imposes artistic form. लिटरेचर का लाइफ के साथ एक क्लोज रिलेशन है, रिफाइंड रिलेशन है, और ये जो एक हालत है, जो एक कैफियत है, दिस इज़ एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर. यानी कि लाइफ जो है वो लिटरेचर के साथ इसका कनेक्शन एक असल मौजू है. और लाइफ एक रॉ मटेरियल की तरह है, एक खाम माल की तरह है, जो लिटरेचर को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और फिर लिटरेचर उस पर क्या बिल्डअप करता है, एक आर्टिस्टिक फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट जो है उस पर बिल्डअप करता है, इम्पोज करता है. लिटरेचर एज वी डिफाइन इन द प्रीवियस सेक्शन इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ द राइटर्स. ये राइटर्स की एक कम्युनिकेशन है जो अपने वर्क के थ्रू वो अपने ऑडियंस के साथ, अपने रीडर्स के साथ करते हैं. एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो कि डिफरेंट जॉनरास के थ्रू वो हम तक पहुंचाते हैं. बट दिस कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ इज़ नॉट सो सिंपल एज इट सीम्स. लेकिन ये जो कनेक्शन लाइफ, लिटरेचर और लाइफ के बिटवीन है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये नज़र आ रहा है. दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड क्रिटिक्स हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स जो हैं, जैसे कि प्लाटो है, एरिस्टोटल है और सॉक्रेट है, इन सब ने भी इसको डिस्कस किया है. सो इन सब के क्या आइडियाज़ हैं, इन दी एंड जो कंक्लूजन होती है, दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, दे हैव कंट्राडिक्टरी. यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. एंड में जो एक आउटकम होता है, एक रिज़ल्ट होता है, वो इन सब का ऑपोजिट होता है, सेम नहीं होता. प्लाटो द great Greek philosopher was the first to give a serious thought to this problem. प्लाटो जो कि पीपल थे, यानी कि शागिर्द थे सॉक्रेट के, और टीचर थे एरिस्टोटल के, यानी कि अरस्तु के जो है ये टीचर थे, और सुकरात के जो थे ये शागिर्द थे. एक ग्रेट फिलोसोफर थे जो कि स्पेशलिस्ट हैं फ़िलासफ़ी में. उसने सबसे पहले इन्हें जो है इस चीज़ को, इस टॉपिक को एक सीरियस रिस्पॉन्ड किया और इसके बारे में बात की, इस प्रॉब्लम के बारे में. द रिलेशन ऑफ लिटरेचर टू लाइफ, इन हिज डिस्कशन ही रेफर्ड मेनली टू पोइट्री. इसने इस रिलेशन को, लाइफ का जो रिलेशन है एक लिटरेचर के साथ, उसने इसे रेफर किया पोइट्री के साथ. बट वट ही सेड अबाउट पोइट्री कैन बी इक्वली अप्लाइड टू लिटरेचर एज अ होल. लेकिन इन्होंने जो कुछ भी पोइट्री के बारे में कहा है कि पोइट्री कम्प्लीटली, यानी कि एक लिटरेचर है और एक लाइफ है, तो क्या हम इसे कम्प्लीटली एज अ होल जो है अप्लाई कर सकते हैं लिटरेचर पे, कि पोइट्री जो है लिटरेचर है और पोइट्री जो है कम्प्लीटली एक लाइफ है. ही रिगार्डेड पोइट्री एज अ मेयर इमिटेशन ऑफ लाइफ. प्लाटो ने जो है एक हवाला दिया है पोइट्री का कि ये महज एक इमिटेशन है, एक कॉपी है, यानी कि लाइफ की, ज़िंदगी की एक कॉपी है, एक मसनूई चीज़ है. एंड थस ही कंडेम द पोइट्स, और उन्होंने इस तरह से पोइट्स को जो है, राइटर्स को जो है कंडेम किया है, यानी कि डिसअप्रूव किया है. हिज ऑपोजिशन टू पोइट्री वॉज बेस्ड ऑन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज.
इनकी जो ऑपोजिशन है ये बेस करती है, जो इन्होंने एक ऑपोजिट बात की है, इख्तलाफ किया है सारे पोइट्स के साथ, सारे क्रिटिक्स के साथ, तो ये क्या है, इनका बेस करता है, इसकी बुनियाद इन्होंने रखी है थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज में इन्होंने कम्प्लीटली इन सब को, पोइट्स को जो है वो कंडेम किया है, डिसअप्रूव किया है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू रियलिटी कंसिस्ट इन द आइडिया ऑफ थिंग्स। तो प्लाटो के मुताबिक ये क्या है, एक्चुअली ये एक ट्रू रियलिटी है जो कंसिस्ट है आइडियाज़ की, और उन आइडियाज़ को जो है हम चीज़ों में फिर डेवलप करते हैं। ये एक्चुअली ये बात राइटर्स की कर रहे हैं और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आइडियाज़ पुट करते हैं चीज़ों में। ऑफ विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर बट रिफ्लेक्शन ऑफ इमिटेशन। अब वो कह रहे हैं सारे आइडियाज़ जो हैं इंडिविजुअल्स के होते हैं, राइटर्स के होते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस क्या है, इमिटेशंस होते हैं, ये सारे कॉपी होते हैं, उनकी आइडियाज़ होती हैं जो कि उसे रियलिटी की शक्ल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से अ ब्लैक डॉग, अ गुड डॉग, अ लेम डॉग एट्सेट्रा। और उन्होंने इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमारे आइडियाज़ जो हैं गुड, ब्लैक और लेम की जैसे होते हैं, और हम किसी चीज़ में पुट करते हैं इन आइडियाज़ को। वी आर कंपेयरिंग द डॉग विच वी एक्चुअली सी विद द आइडियल डॉग। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं डॉग के साथ इन सारी चीज़ों को, जो हमारे माइंड में ये सारे ऑब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, हम इसके साथ कंपेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को। आवर आइडियाज़ ऑफ द डॉग विच इज़ द ट्रू अनचेंजिंग रियलिटी। ये सारे हमारे आइडियाज़ होते हैं जो कि अनचेंज रियलिटी होते हैं, हमारे माइंड में एक जो रियलिटी चल रही होती है, एक ट्रू चीज़ होती है, हम उसे उसमें डेवलप कर देते हैं। वाइल द डॉग्स विच वी नेम एज ब्लैक, गुड, लेम एट्सेट्रा आर मेयर रिफ्लेक्शंस एंड इमिटेशंस ऑफ दैट रियलिटी। तो ये इस तरह से इस रियलिटी में एक रियलिटी होती है हमारे माइंड में ब्लैक की, गुड की या लेम की, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो उससे हम रियलिटी में पुट करते हैं, अपनी लिटरल वर्क में पुट करते हैं या किसी भी तरह से शो ऑफ करने के लिए। Thus the poet who imitate those objects which are themselves imitation of reality। तो इस तरह से पोएट जो है इन इमिटेशन को अपनी रियलिटी में शो ऑफ करता है, रियलिटी की शक्ल में ऑडियंस को, राइटर्स को शो ऑफ करता है। इज़ ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग समथिंग, ये जो कि रियलिटी से रिमूव नहीं हो सकते। सो प्लाटो डेवलप दिस आर्ग्यूमेंट फर्स्ट विद रेफरेंस टू द पेंटर। पेंटिंग इज़ एन इमिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक object or group of object, and if it is nothing but that, if reality lies not in apprehending reality। अब यहाँ पे प्लाटो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो जो अपनी आर्ग्यूमेंट है वो एक पेंटर के एग्जाम्पल से हमें, उसके थ्रू से हमें जो है बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि पेंटिंग इमिटेशन करता है अपने पेंटिंग के थ्रू, और उसके बाद उस पेंटिंग में जो कुछ होता है, दिस इज़ समथिंग रियलिटी। जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह से वो उसे पेंट करता है, वो उसके माइंड में रियल आइडियाज़ होते हैं जो कि उसमें डेवलप हो जाते हैं। द पेंटर इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलरली वैल्यूएबल। पेंटर जो है कुछ पार्टिकुलरली या वैल्यूएबल नहीं कर रहा है। दीज ऑल आर अबाउट हिज थिंकिंग एंड अबाउट हिज माइंड। सो जस्ट एज द पेंटर only imitate what he sees and does not know how to make or to use what he sees। तो इस तरह से पेंटर को जो कुछ नज़र आ रहा होता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है, तो वो उसी को अपने काम में डेवलप कर देता है, उसी फॉर्म में उस चीज़ को बनाता है। ही कुड पेंट अ बेड बट नॉट मेक इट। सो वो बेड को पेंट कर सकता है बट उसे बना नहीं सकता है। सो द पोइट इमिटेट रियलिटी विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग इट। अब वो ये इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पोइट्स को कि पोइट इमिटेट करता है रियलिटी को विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग इट, यानी कि उसके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती है, सिर्फ वो रियलिटी को जो है इमिटेट कर रहे हैं, दैट्स इट। पोइट्री और लिटरेचर एज अ होल इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड थस ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि प्लाटो इस चीज़ के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं कि पोइट्री जो है इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, इसका लाइफ के साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ इतना ही है। और इस तरह जब इमिटेशन ऑफ इमिटेशन हो गया, सो दिस हैज़ बीन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने आइडियाज़ और सजेशन ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।